हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक जो है नाज़िज्म एंड द राइजेस ऑफ हिटलर, यानी नरसीवाद और हिटलर का उदय। ये क्लास 9th के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि समय समय पे जो है आपके लिए एग्ज़ाम के जब भी आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपसे गुजारिश इतना ही रहता है कि आप जितना हो सके इसको जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें और एग्ज़ाम में जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इन्हीं में से एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए, मुझे उन सभी बच्चों से कोई मतलब नहीं है जो नहीं वीडियो देख रहे हैं, मुझे सिर्फ आपसे है जो वीडियो को देख रहे हो और इसको सही से समझने की कोशिश करो। जब तक आप समझोगे नहीं टॉपिक तब तक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है मैं हमेशा समय समय पे आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा जो एग्ज़ाम व्यू से रहेगा। चलिए अधिक बातें ना करके हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इसमें है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस बाय द जो Weimar republics. There is a most important question here. The problem faced by the Weimar republics were a flawed. The first year, the Weimar is a constitution had a inherent to the drawback, making to the Weimar is a republic fragile. There is a most important here, and one was a proportional representation, which made it difficult for any party to get a majority, leading to the coalition government. There is a most important point here. And the next here, the Article 48, which give to the President the power to rule by as a declare as a suspended civil right and to the impose on emergency. There is a most important for here Article 48, which give to the President to the power to rule by the declaring to the suspend civil right and to the impose on an emergency. And the next year, people lost the confidence in the democratic parliamentary system. There is a most important here, and also important, the Weimar Republic was not received bail by the people because of the term it was of forced to the accept as a realized at the end of the First World War. It was the harsh and humiliating treat that Germany had to be accepted with the Allies. Many people held to the Weimar Republic responsible for the defeat in the war and the accepting the term of the threat of the Versailles. There is a most important point here. And the next year, in 1923, Germany refused to pay a preparation of payments, and the French occupy its leading industry area. The rule is there is a claim, there is a call. Germany offer passive resistance and printed paper currency. There is a most important here, and with the too much of paper currency in a circulation, and the value of German mark feel there is a situation is called hyperinflation. The Weimar Republic had to face another economical crisis here. The USA withdrew here support, then World Stress Exchange crash is a 1929. There is a 1929 is economical crisis in Germany. There is a most important factor, and here arrive of the Hitler. Adolf Hitler is the full name. German is economical was hit by their economical crisis. The workers lost their job or were paid or reduced wages. There is a most important fact here. The number of unemployed and reached to 6 million. 6 million is a maximum. The economical crisis create a feeling of fear among the people. There is a most important here, and come to the Hindi here. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका हिंदी में भी अनुवादित करूंगा और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कई फॉर्म में आपके समक्ष जो होगा रिलीज़ होगा, तो इसको हर तरफ से जो है आप सहारिए और इसको आगे जो है बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है अगर हिटलर के रिगार्डिंग हम देखें तो वाइमर जो है गणराज्य की समस्याओं का वर्णन। देखिए, जो वाइमर था वो गणराज्य की समस्या सबसे बड़ी क्या थी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन
यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है। अगर हिटलर के पूरा जीवन के हिस्ट्री देखना है तो इसके लिए वीडियो जो है त्रिपान स्टडी सेंटर पे उपलब्ध है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये आपको जो है इसका मेन होम पेज पे प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर हमने सारे राइजिंग ऑफ हिटलर की पूरी स्टोरी दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, जब मैं बीए वाले को करा रहा था हिटलर की सिलेबस, उसमें हिटलर के हर एक जो है बातों के जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ। अगर हिटलर के सारी विषय में अगर देखना चाहते हैं तो इसका जो है 45 मिनट का वीडियो जो है, जो कि बीए वालों के बच्चों के लिए बनाया गया था, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो वहाँ से भी आप काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बात अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वाइमर गणराज्य की समस्या का वर्णन कीजिए। देखिए, आपने इंग्लिश में अभी समझने की कोशिश किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए वाइमर गणराज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो वीमर जो है कहते गणराज्य द्वारा सम्मान की जाने वाली समस्याएं कुछ इस प्रकार थी, जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अगर हम वीमर संविधान में जो है अंतर्निहित कमियां थी जो वीमर गणराज्य को नाजुक बना रही थी। आपको पता है कि जब यहाँ पर हिटलर का उदय हुआ तो उस समय जो है काफ़ी नाजुक स्थितियां थी, जो कि बहुत ही नाजुक कह सकते हो। एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व था, जिसमें किसी भी दल के लिए संगठन सरकारों के लिए बहुमत प्राप्त करना कठिन बना दिया था। यानी किसी भी सरकार को जो है पूरी तरह से बहुमत नहीं मिल रहा था। कारण क्या था? वहाँ की समस्याएं। और समस्याएं क्या थी? समस्या जो हर देश की होती है, बेरोजगारी, गरीबी, इकोनॉमिकल क्राइस, और सबसे बड़ा जर्मनी की जो प्रॉब्लम थी वो इकोनॉमिकल क्राइस थी, यानी अर्थव्यवस्था की जो संकट थी वो सबसे बड़ी थी। अगर तीसरे पॉइंट पे हम अगर नज़र डालें तो इसमें साफ बताया गया है कि अनुच्छेद जो है 48 में, जिसमें राष्ट्रपति को डिक्कू द्वारा शासन करने और नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और आपातकाल लगाने की शक्ति भी दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात आती है यहाँ पर। अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान करने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ गया। अगर हम चौथी बात पे अगर ध्यान दें तो लोगों का लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से विश्वास उठ गया। जब लोगों के साथ बुरा होगा तो विश्वास उठ जाना एक स्वाभाविक बात रहती है। तो इसका सबसे बड़ा समस्या यही थी कि लोगों को लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से जो है विश्वास उठ गया। उसके पश्चात था पांचवा पॉइंट, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्षलाय में शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होने के कारण वीमर गणराज्य के लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। यानी देखा जाए तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध जो हुई थी, जिसके अंत में वर्षलाय शर्तों को स्वीकार करने के से मजबूर होने के कारण उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल सी गई थी, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में उनको देना पड़ा। जो हार गए थे देश, उनको जो है इसकी भुगतान करना पड़ा। अगर इसकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो पूरा आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए जो है हिटलर वाली जो वीडियो मैंने बताई है वो देखना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के समय खराब हुई, और कैसे जो देश हार गए उनको इसका जो है सजा भी दी गई, और वो भी उनको पैसों के रूप में दी गई थी। यह एक कठोर और अपमानजनक संधि थी, जहां पर जो है लोगों को मजबूर किया गया था। ये अपमानजनक संधि थी जिसे जर्मनी को मित्र राष्ट्र के साथ स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो हार गए और जर्मनी के जो राष्ट्र मित्र थे उनके साथ स्वीकार करना पड़ा। कई लोगों ने युद्ध में हार के लिए वर्षलाय की संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए वीमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया कि आपने के कारण ही हमें जो है इस समस्या से जूझना पड़ गया। कहते हैं 1923 में जर्मनी ने मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया, लेकिन जर्मनी ने साफ इनकार कर दिया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका जिम्मेवार हम नहीं हैं, और उसका जो मुआवजा देने की बात कही गई थी जिसको पहले स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में ये जो था इनकार कर गया कि हम इसका कोई भी जो है हर्जाना नहीं देंगे। और फ्रांसीसियों ने अपने कोयले का दावा करने के लिए अपने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूहर पर जो है कब्जा कर लिया। यानी ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ इन्हीं कारणों से हुआ कि रूहर पर जो है कब्जा इन्होंने कर लिया था। और जर्मनी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और मुद्रित जो है कागजी मुद्रा का पेशकश की। संचलन में बहुत अधिक कागजी मुद्रा के साथ जर्मन चिन्ह का मूल्य भी काफ़ी गिर गया, और जब काफ़ी गिर गया तो जर्नल सी बात है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आएगी, और यही हुआ। ठीक है, तभी तो हिटलर का उदय हुआ, क्योंकि जर्मनी में देखा जाए तो बिल्कुल ही करेंसी का जो रेट था घट गया, और स्थिति को जो हाइपर टेंशन कहा जाता है, यानी इस स्थिति को वहाँ के लोगों के लिए हाइपर टेंशन का नाम दिया गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो था
काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि ना तो उसके पास जॉब थी, ना ही खाने पीने की व्यवस्था थी। तो जनरल सी बात है, लोग तो परेशान होंगे। जब लोग परेशान होंगे तो उसकी सरकार भी गिरेगी। उसके पश्चात अगर हम बात करें 7वां पॉइंट, जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण में से माना जा सकता है, जिसके बारे में अभी कुछ देर समय पहले चर्चा किए थे, कि बीमन गणराज्य को एक और अधिक जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कहते हैं ये संकट बहुत ही विचित्र और बहुत ही संभावनापूर्ण था। कहते हैं जो है 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में दुर्घटना होने पर, यानी एक्सचेंज में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, यूएसए ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और ये बहुत बड़ी जो थी आर्थिक संकट का कारण बना। जब समर्थन वापस ले लेने की वजह से जो था बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट से जो है जर्मन जो है अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई, और श्रमिकों में अपनी नौकरी खो दी या उन्हें कम मजदूर का भुगतान किया गया। यानी देखा जाए साधारण शब्दों में तो क्या किया गया, अगर ऐसे अर्थव्यवस्था संकट आती है तो सरकार क्या करती है, जो नौकरी पे लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनमें से छटनी कर देते हैं, आधे को हटा देते हैं, या क्या करते हैं उनके वेज जो होते हैं, पैसे होते हैं, तनख्वाह होते हैं, उसको घटा देते हैं। तो यही प्रावधान अपनाया जाता है हमेशा जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है। अगर आपको शायद याद हो, कोरोना वायरस के टाइम जो भारत सरकार ने भी जो क्या किया था, जो सरकार जो है सरकारी अफसर सब थे, उनके पैसे को डिक्रीज कर दिया था। अगर वो डिक्रीज नहीं करते, अगर वही वेज देते रहते, तो भारत में भी जो था अर्थव्यवस्था जो क्राइसिस था वो आना स्वाभाविक बात था, जैसे कुछ दिन पहले हमें श्रीलंका में देखने को मिला है। तो यही जो थी, श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी और उन्हें कम मजदूरी का भुगतान भी किया गया, और बेरोजगारी की संख्या जो थी 60 लाख तक पहुंच गई, जो कि बहुत बड़ी जो है संकट का घड़ी मानी जा सकती है। आर्थिक संकट ने लोगों में भय की भावना जो है पैदा कर दी। तो यहाँ पर जो मैंने 7 पॉइंट डिस्कस किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और संभवतः ये जो है एग्ज़ाम में भी आने की चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली आपका बदल जाएगा, लेकिन मतत्व वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा। यहाँ पर जो है हम कम से कम 6 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो वो जो है आपको समय समय पर जो है प्राप्त होता रहेगा। अगर आपको जो है इन क्वेश्चनों को समझना और अच्छे से है तो आपको तिरपान स्टडी को जो है सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो आप जो इतने सारे वीडियो में कहाँ तलाशते रहोगे अपने क्लास की वीडियो। तो इसीलिए जो है अभी सब्सक्राइब कर लेना, आपके फ़ायदेमंद रहेगा। हम जो है दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।